So, as all of you know, we are in the unit number 7 and we are studying about state space analysis. Last time, like most of you were absent, and we had only Jill and Palani in our class. So, we did just a bit of revision of state space analysis. You did not miss much. So, we will continue from there. So just I'll again give a quick summary so that you can recall whatever we have discussed in the class. So Unit 7 was about understanding the concept of state variable, and state model, and also we will see derivation of state model from block diagram, diagonalization, solving time invariant state equations, state transition matrix, and properties, controllability and observability. So let me admit Harshil. Okay, so we will continue from here. So the vital concept in this particular unit is understanding this particular equation: x dot equals to ax plus bu and y equals to cx plus du, right? So for the first equation, which is x dot equals to ax plus bu, is known as state equation, and the second one is known as output or measurement equation. We had also discussed about each variables appearing in this equation and all the matrices A, B, C, and D, their meaning, their significance, and also how to find them. I mean, like what they physically mean. So in our previous studies, so far we have discussed about the mathematical model in terms of differential equation, transfer function model based mathematical model. Now we are into state space model. State space comes under the model control technique, and these two methods, DE and TF, they come under classical control system technique, right? So we are currently trying to understand the modern control system, and in that we understood what is the state variable, and state vector. So just to revise, can somebody give me the example of real-time system and also tell me the states of the system? We will ensure that we are understanding the concept. So please tell me a real-time example of any system and also tell me the states. So please. Okay, so I'll start with Harshil. So Harshil, can you hear me? Harshil, are you there with us? So again, Jill had some issue with his microphone, he said last time. How about Trivil? Yes, Trivil, please tell me. You have to tell me about the real-time system and also their states. Don't worry about your answers. Just can tell me whatever your understanding is, because so far you have discussed about many systems. Rather, we have discussed. एक्चुअली Yeah. जब क्लास था तब मेरा इंटरनेट कनेक्शन वेरी लो है, की वजह से वो लेक्चर मैं ठीक से नहीं Dhruvil, समझ your voice is too low. So can you please be a little louder, or can you adjust your पाया। सर microphone? लास्ट टाइम जब लेक्चर था तब मेरा इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी लो था, इसी वजह से वो लेक्चर ठीक से अभी तक Oh, नहीं। अच्छा, Dhruvil का internet connection का problem था. So I understand, Dhruvil. We have this issue. Nikhil, how about you? Yes, sir. Can you repeat the question? Okay, yes, Nikhil. So my question is, can you give me a real-time example of any system, or also tell me the states of that system? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ and then you give me. नहीं, एरोप्लेन का हाइट का एल्टीट्यूड का आपने एग्जांपल दिया था ना, वही एग्जांपल। Okay, very good. So you are saying that in case of aircraft is a system, or airplane is a system,
and height, velocity. These things will be state of the system. Very good. How about Palani? Palani Rajan, you are there? So okay, we have to ensure that whatever little bit we are learning or discussing, we should also know the concepts. So don't worry about your answers. So please feel free to discuss, and we will ensure that at the end of the course or at the end of this class, we understand about the system and also about the states. So let's say talk about the very fundamental example which we have been discussing for many times. This मान लो कि टैब है एक वाटर टैप, उसका स्टेट क्या होगा? फ्लो. कैन वी से फ्लो? बाय नोइंग द फ्लो वी डिस्क्राइब अबाउट द वाटर टैप सिस्टम. अभी इलेक्ट्रिकल फैन की बात करेंगे तो वी विल हैव द स्टेट एज करंट एंड वोल्टेज. तो current and voltage they describe about the system, about system's RPM, right? In the example of tank system, we again can say that level of the tank is a state of the system, and also if there is an inflow outflow, then outflow and inflow can also be a state of the system. हम बाइक चलाते हैं, बाइक के लिए जो स्टेट होगा, बाइक इज अ रियल टाइम सिस्टम एंड द states are position, velocity and acceleration. कार के लिए कार इज ऑल्सो सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम. उसके लिए जो स्टेट्स होंगे दे दोज आर पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट? तो देखो कि रियल टाइम एग्जांपल जितने सारे हमारे पास है, और स्टेट का डेफिनेशन मैंने बोला था कि स्टेट आर वेरिएबल और स्टेट वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटी who describe the systems, right? तो उसी तरह से एक और एग्जांपल की हम अगर बात करें स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम की, तो in spring mass damper system we have, what are the states in spring mass damper system? Can somebody tell? ये एक रियल टाइम सिस्टम है स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम. सो व्हाट विल बी द स्टेट्स ऑफ स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम? यस निखिल. The displacement, वेरी गुड. डिस्प्लेसमेंट एंड displacement and damping velocity also and inertial acceleration, right? देखो उस पे जो हम yes, इक्वेशन, हाँ इक्वेशन जो लिखते हैं ना, m x डबल डॉट, so let me write for you, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज we will not be able to appreciate the concept. ठीक है. So we are understanding state variables or state. ठीक है. जैसे मान लो हमारे पास एयरक्राफ्ट है, निकले गिवन द एग्जांपल ऑफ इट. तो इसके स्टेट्स क्या क्या होंगे? इसके स्टेट्स हो सकते हैं हाइट, पोजीशन, with height also include position, so you can say x y z position of the aircraft, and also velocity v x v y v z, and thrust. These are the states of the system. You can have electrical fan, let's say. Sorry about my bad drawings. ऐसे करके इसके लिए हो जाएगा करंट एंड वोल्टेज. ठीक है. You can have another systems like tank systems. So इसका कुछ लेवल होगा यहाँ तक ऐसे करके. Suppose you have inlet and outlet. This is your knob. ठीक है. तो इसके लिए क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ द टैंक एंड फ्लो रेट. मान लो इसका Q1 है, उसका Q2 है, तो फ्लो रेट्स. ठीक है.
अब स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम है, ये तुम्हारा स्प्रिंग हो गया। इसके लिए जो स्टेट होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, डैम्पिंग वेलोसिटी एंड इनर्शियल एक्सेलरेशन। तो ये देखो सारे डिफरेंट सिस्टम है, ये एयरक्राफ्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल फैन है, लेवल टैंक है, एंड दिस इज योर स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम। देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट के लिए पोजीशन की, एक्स वाई जेड वेलोसिटी, एंड इट कैन आल्सो हैव एंगल ऑफ अटैक एंड साइड स्लिप एंगल्स। सो ये सारे जो चीज़ें हैं एटसेट्रा, they describe the current state of the system. That's why they are known as the state variables. These are the variables which describes the internal state of the system or current state of the system. फैन के लिए हमें अगर पता है कि इसका वोल्टेज और करंट कितना है, then we can find RPM. So these are the state variables of the system which describes the internal nature of the system or internal state of the system. लेवल टैंक में क्या होता है कि if you know the level of the tank कितना, let's say 100 centimeter, flow rate can be Q1, Q2, so they describes about the dynamics of the system or internal structure of the system. Spring mass damper system में when we know that by applying force some displacement x is taking place, then this x, because we write equation mx dot double dot plus bx dot plus kx equals to f of t. तो ये जो सारा चीज़ है ना, ये वेरिएबल्स दे आर नोन एज द स्टेट वेरिएबल्स, एक्स डॉट एक्सेलरेशन, एक्स डैम्पिंग वेलोसिटी एंड एक्स इज योर displacement. So these are the variables known as state variables because they describe the dynamics of the system or they describe the internal behavior of the system. तो इस तरह से हमारे पास रियल टाइम सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट्स वी कैन डिस्क्राइब द डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम। तो स्टेट स्पेस का क्या हो रहा है कि पहले हम लोगों ने दो चीज़ सीखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड मॉडल, जैसे ये था, एक ट्रांसफर फंक्शन बेस्ड मॉडल सीखा था हमने, जिसमें हम लिखते थे टी ऑफ एस इक्वल्स टू एस प्लस 5, एस प्लस 5 प्लस एस प्लस 6, एस प्लस 2, एस प्लस 3, मे बी एस क्यूब, एस 4, एस 2, एनीथिंग। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम उसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम प्रैक्टिस करते करते सीख सकते हैं। तो स्टेट स्पेस मॉडल का जो नया कॉन्सेप्ट आया है वो आया है ऐसा। स्टेट स्पेस का क्या है, स्टेट स्पेस मॉडल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडलिंग अप्रोच लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ट्रांसफर फंक्शन। उसमें हम कैसे लिखते हैं, एक्स डॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू एंड वाई इक्वल्स टू सी एक्स प्लस बी यू, दैट इज नॉन एज योर स्टेट स्पेस मॉडल। तो जितना सारा हमने डायनामिक्स डिस्क्राइब किया, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, सबका ये स्टेट स्पेस हो सकता है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे पास जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिकल मॉडल का वो है डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है ट्रांसफर फंक्शन। सो नाउ क्वेश्चन कम्स, कैन वी कन्वर्ट फ्रॉम डीई टू एसएस एंड डीईएफ टू एसएस, अगेन दिस टू दिस एंड दिस टू दिस। ये तो हमें यही सीखना है, ट्रांसफॉर्मेशन, this to this, SS to DE, SS to TF, DE to SS and TF to SS, यही सीखना है, यही हम अभी पढ़ रहे हैं। तो coming to the next concept, suppose this is your RLC system. In RLC system we have states like current and voltage once again. देखो यहाँ पे इसको हमने अप्लाई किया KVL लूप में। Forget about KVL loop, this is the mathematical equation of that. Some of you have also solved assignment number 1 by giving the example of RLC circuit, and everybody now knows about first order differential equation representation. So this is also a mathematical model of RLC circuit, but in the context of differential equation. So this is equation for current and this is the equation of your voltage. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेट वेक्टर में हमने क्या क्या लिया, स्टेट, करंट लिया, वोल्टेज लिया, ये एक्स हो गया। एक्स डॉट क्या हो जाएगा, डी आई टी बाई डी वी सी बाई डी टी, आई डॉट और वी डॉट। वाई डॉट का इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, वी डॉट का इक्वेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं
then x dot will become like this, and the matrices which will appear with association to state, they are known as A, association to U, they are known as B, association to in measurement equation, association with X, they are known as C, and since we don't have any D, so it will be, D will be your 0. So this is your A matrix, this is your B matrix, this is your C matrix, and D matrix is again 0. तो मैंने लास्ट टाइम में रिपीट किया था, बट सिंस it's a bit new for all of you, so I thought let me repeat that. अब हम आते हैं स्टेट स्पेस मॉडल फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन, राइट? सो वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन. इस सिस्टम का डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल हमारे पास था, एंड वी कन्वर्टेड इट इन टर्म्स ऑफ स्टेट स्पेस मॉडल. अभी ट्रांसफर फंक्शन से कैसे करेंगे, लेट्स सी. सो जब हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं तो इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, देख लो. ट्रांसफर फंक्शन, राइट? तो इसमें क्या हो सकता है कि केस 1 ts will be equals to k by s n plus s n minus 1 plus कुछ भी यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं हम, a0 a1 an, ऐसे करके होगा. तो इसमें क्या हो रहा है कि जो न्यूमरेटर है दैट इज कांस्टेंट. पहला केस है ये. सेकेंड केस में क्या होगा, केस 2 t of s will be equals to, मान लो b0 s to the power m plus b1 s to the power m minus 1 bn divided by, sorry, a0 s to the power n plus a1 s to the power n minus 1 plus an. तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, वो पॉलिनोमियल है. ये दो तरह के केसेस आ सकते हैं, तो हमें वही देखना है कि अगर केस 1 रहेगा तो व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ गेटिंग स्टेट स्पेस मॉडल, केस 2 रहेगा तो व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ गेटिंग स्टेट स्पेस मॉडल. सी व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो फर्स्ट केस ये है. ट्रांसफर फंक्शन हैविंग कांस्टेंट टर्म इन न्यूमरेटर, ट्रांसफर फंक्शन न्यूमरेटर, है ना, यही कर रहे हैं. अभी देखो ट्रांसफर फंक्शन हैविंग कांस्टेंट टर्म न्यूमरेटर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसे होगा, इस टाइप से. दिस इज योर कांस्टेंट, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? एंड पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, एस एन दिस दिस दिस, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको. तो नाउ रीअरेंज द एबव इक्वेशन. अभी हम क्या करेंगे, रीअरेंज का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके. तो y s times s n plus a n minus 1 s to the power n minus 1 plus this plus a 0 times y s will be equals to b 0 times u s. ठीक है, ये हो गया. अभी all of us we know that in if we have to convert in time domain, then we have to take inverse Laplace, right? ये देखो क्या किया हमने, ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन को हमने ब्रेक कर दिया इस तरह से, और इसको फिर से हम कन्वर्ट कर रहे हैं लाप्लास, इनवर्स लाप्लास से टाइम डोमेन में, ऐसा आ गया. ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरा जो आउटपुट वेरिएबल है yt इज योर आउटपुट वेरिएबल, एंड ut इज योर इनपुट वेरिएबल. ठीक है, तो हमें इक्वेशन बनाना है. हमारा टारगेट क्या है, देखो अभी भी मेरा जो टारगेट है वो है इस तरह से, x डॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू एंड y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू. ठीक है, तो y t इक्वल्स टू हमने मान लिया x है, x1 है.
ये हम मान सकते हैं इतना था। तो जैसे ही वाई टी इक्वल्स टू एक्स वन हुआ तो वाई टी डॉट विच इज डी ऑफ वाई टी बाई डी टी इक्वल्स टू एक्स वन डॉट हम लिख सकते हैं, डेरिवेटिव है। तो इस डेरिवेटिव का वेरिएबल का नाम हमने रख दिया एक्स टू। फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा वाई I mean y double dot t which is essentially d square by t square equals to मैंने नाम दिया 3 which is essentially your x1 double dot is essentially your x2 dot, इसका डेरिवेटिव है ना। तो ऐसे करके इसका nth में तक जाएंगे, n-1 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा डी एन माइनस वन वाई टी बाई डी टी एन इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। और ये फाइनली जो यहाँ पर मिसिंग है ये वाला टर्म, ये होगा डी ऑफ एन वाई टी बाई डी वाई डी टी एन विल बी इक्वल्स टू एक्स एन डॉट, इसी का डेरिवेटिव होगा एक्स एन डॉट का। तो देखो कि ये मैंने डेरिवेटिव टर्म में लिखना शुरू कर दिया इसको इधर। उसके बाद क्या होगा, यू टी को मान लो यू है, तो वही मेरा इनपुट है। तो अभी का ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये तुम्हारा d ऑफ n वाई टी बाई टी टी एन इज एसेंशियली योर एक्स एन डॉट प्लस ए वन एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन डॉट, ऐसे करके चल रहा है। और फाइनली ये हो जाएगा ए जीरो एक्स वन तक। तो वही कर रहे हैं कि वो जो इक्वेशन है x के टर्म में, जो डेरिवेटिव के टर्म में हम लिखेंगे एक्स एन डॉट ए एन माइनस वन एक्स एन प्लस ए टू, ऐसे करके ये चलता रहेगा, है ना। तो फाइनली जो एक्स एन डॉट का इक्वेशन बन के आएगा वो आएगा ऐसा। प्लीज रीड केयरफुली बिकॉज दिस इज हाउ यू। तो ये क्या हुआ कि ये मेरा एक डेरिवेटिव के टर्म में और इधर कांस्टेंट टर्म में सारा आ गया, ठीक है। आउटपुट इक्वेशन हमको पता है कि आउटपुट वाई टी इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स वन, ये मेरा आउटपुट इक्वेशन। अभी एक्स डॉट, जितने सारे एक्स डॉट है, एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट, ये जो हमने यहाँ से निकाला था ये मेरा आउटपुट इक्वेशन हो गया। एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट ये सबको हम स्टेट बना देंगे, ठीक है। तो एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट एक्स एन माइनस वन डॉट एक्स एन डॉट, ये मेरा हो गया स्टेट मॉडल। क्योंकि हम जैसे लिखते हैं ना एक्स डॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू, तो ये जो एक्स है इसी का डेरिवेटिव इसमें रहेगा। अगर मान लो कि इस एक्स में एक्स वन और एक्स टू है, दो वेरिएबल है, तो इसके लिए जो स्टेट बनेगा वो ऐसा बनेगा। मतलब योर एक्स, इफ एक्स हैज टू वेक्टर x1 x2, तो योर x डॉट विल बी x1 x2 x डॉट x2 डॉट, ऐसे करके बनेगा ये। उसके बाद जो ए मैट्रिक्स होगा वहाँ पे तुम्हारा x1 x2 से मल्टीप्लाई होगा। यू हैव टू फाइंड द सेम मैट्रिक्स। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्टेट वेरिएबल्स हम कंसीडर कर रहे हैं कि दे आर माय स्टेट वेरिएबल्स x1 x2 xn, ये सारा, ठीक है। तो इसका जो स्टेट इक्वेशन बनेगा वो x1 डॉट x2 डॉट लेफ्ट हैंड साइड में ये बनेगा। अब देखो कैसे होता है कि x डॉट हमने यहाँ लिख लिया। अभी x डॉट इक्वल्स टू क्या है, पहला जो इक्वेशन है देखो x1 डॉट इक्वल्स टू है x2, यही है ना ये इक्वेशन से। x1 डॉट इक्वल्स टू मेरा है x2। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो ये जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ से, है ना, x1 का यहाँ से हो रहा है। तो x1 डॉट जो होगा वो x2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर x2 डॉट जो होगा वो x3 होगा, x2 डॉट जो होगा x3 होगा, इसीलिए ये x3 वाले टर्म में अपीयर होगा। ये है x1 x2 x1 x2 x3, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। तो नाउ बाय फॉलोइंग दिस लॉजिक यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ए, और जब फाइनल एक्स एन डॉट आएगा तब हमारे पास आएगा एक्स एन डॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जीरो एक्स वन माइनस ऑफ ए वन एक्स टू माइनस ऑफ ए टू एक्स थ्री, ऐसे ऐसे करके माइनस ऑफ ए एन माइनस वन ए एन माइनस वन एक्स एन, कैसे आएगा ये यहाँ से आता है। ये जो फाइनल इक्वेशन है
एंड प्लस बी यू है, बी नॉट यू है, जो कि लास्ट वाले इक्वेशन में अपियर हो रहा है। बाकी इक्वेशन में एक्स, व्हेन आई राइट x1 dot equals to x2, we don't have bu term, so it is 0 times u. x2 dot equals to x3, it is x3 plus 0 times u, सब में 0 है u का टर्म। तो फाइनल वाले टर्म में सिर्फ हमारा आएगा b नॉट q, जो कि यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है। तो दैट इज योर b मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू कंट्रोल इज नोन एज b मैट्रिक्स, ठीक है। अभी देखो y के लिए जाते हैं, तो y के लिए सिंपल सा जो गाइडलाइन है मेरा, वो y इक्वल्स टू है x और x1। देखो आउटपुट इक्वेशन हमने ले लिया है y इक्वल्स टू x, तो बाकी जितने सारे कंपोनेंट होंगे इसमें x के साथ सभी हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये इक्वेशन जो होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये से 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से 0 0 0, तो फाइनली इट विल बी योर y इक्वल्स टू x1। तो इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से लिखेंगे। एंड इन आउटपुट इक्वेशन मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू योर स्टेट वेरिएबल इज नोन एज सी मैट्रिक्स। एंड यहाँ पे हमारा y दिस प्लस d टाइम्स u है, और d क्या है मेरा 0 है ना, तो d 0 है तो d मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट इक्वेशन, स्टेट स्पेस मॉडलिंग अप्रोच में वी हैव फाउंड स्टेट स्पेस मॉडल x डॉट इक्वल्स टू ax, ये उसी फॉर्म में है। y इक्वल्स टू cx प्लस du, ये है a, ये है b मैट्रिक्स, ये है c मैट्रिक्स, ये है d मैट्रिक्स, d इज योर 0, राइट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो है स्टेट स्पेस का। ये हमने कहाँ से लाया, यहाँ से लाया। वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम दिस ट्रांसफर फंक्शन हैविंग कांस्टेंट टर्म इन न्यूमरेटर, ट्रांसफर फंक्शन हैविंग कांस्टेंट टर्म्स इन न्यूमरेटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से आ गया। अब ये एस डोमेन में है तो यू चेंज इट इन टी डोमेन, तो इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे तो एस डोमेन से टी डोमेन में आ जाएगा, टाइम डोमेन में आ जाएगा। टाइम डोमेन में आने के बाद क्या करेंगे कि वी विल अज्यूम दैट वाई टी और एक्स का रिलेशन निकालेंगे इनपुट आउटपुट का। तो अज्यूमिंग वाई टी इक्वल्स टू x1, तो x2 क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट इज x1 डॉट इसका डेरिवेटिव, x2 डॉट इसका डेरिवेटिव एंड डॉट, so finally dy and by dt n equals to xn dot। तो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 till xn, they are known as state variables, and complete जो पैकेज है इसका that is known as state vector, it can be capital X। तो कैपिटल X जो है वही है स्टेट वेक्टर, इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं they are known as state variables, ठीक है। तो ये होने के बाद हमने इसको स्टार्ट किया इस फॉर्म में लिखना, और व्हेन यू कैटेगोरिकली राइट स्टेट इक्वेशन then you will form a matrix like this। So this x dot is essentially your ax plus b times u, and y equals to cx plus d times u, where d is your null matrix or zero matrix, okay। So this is quite straightforward। So now moving ahead to the second case where you can justify this one, transfer function having polynomial function of s in numerator, right। अब इसका क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वो कैसा दिखेगा। So would you like to try, all of you? This is our एग्जांपल। ये कौन सा एग्जांपल है, केस नंबर 1 का, where numerator is constant।
कांस्टेंट है 1, दैट इज ओनली b0। तो क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर दो, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 टाइम्स वाई एस इक्वल्स टू यू एस। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, टेक लैप्लास इनवर्स। स्टेप 2 लैप्लास इनवर्स ले लिया इसका। हमें पता है कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सिंपल वाई को वाई टी में कन्वर्ट करेगा, यू एस को यू टी में कन्वर्ट होगा यहाँ पे। अज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0, तो ये आ गया। अभी फिर से वही करेंगे, वाई टी को मान लेंगे कि x1 है। x1 एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए जिसको हम क्या कर रहे हैं, स्टेट वेरिएबल बोल रहे हैं। तो स्टेट्स आर x1 x2, ये करेंगे। तो वाई टी अगर x1 है तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, x1 डॉट हो जाएगा, एंड यू टी क्या होगा, u हो जाएगा, है ना। तो स्टेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, x2 डॉट इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 2 प्लस यू, ये है स्टेट इक्वेशन। एंड वाई टी इक्वल्स टू वाई और इक्वल्स टू 1 x1, ये हो गया आउटपुट इक्वेशन। तो स्टेट इक्वेशन पता चल गया और ये आउटपुट इक्वेशन पता चल गया। तो इसी दोनों इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, राइट। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा, x डॉट इक्वल्स टू, वेरिएबल क्या है इसके अंदर, x1 एंड x2। x1 डॉट और x2 डॉट, दे आर द स्टेट्स, एंड दिस इज योर a मैट्रिक्स, दिस इज योर b मैट्रिक्स। तो a मतलब क्या हुआ, ये 0 1, क्योंकि x1 डॉट जो है वो सिर्फ x2 उसमें रहेगा, x2 डॉट में क्या रहेगा, माइनस x1 माइनस x2, माइनस x1 माइनस x2 प्लस u यहाँ पे आ गया, तो 0 1। y के केस में वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल है, तो y इक्वल्स टू 1 0 और इधर होगा x1 x2, तो ये हो गया प्लस d 0, है ना। तो इसके लिए a मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, a मैट्रिक्स विल बी 0 1 माइनस 1 माइनस 1, बी मैट्रिक्स हो जाएगा 0 1, सी मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू 1 0 और डी मैट्रिक्स विल बी 0। So I hope this is clear. A matrix, B matrix, C matrix and D matrix from this representation. ये कैसे आता है, फिर से always keep in the mind x dot equals to ax plus bu, y equals to cx plus du। ये a हो गया, x हो गया bu, y equals to cx plus du, d is your 0। ये a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, ठीक है। नाउ ट्रांसफर फंक्शन हैविंग पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ s इन द न्यूमरेटर, ये हो गया केस 2, जहाँ पे केस 2 में हम क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर है वो भी पॉलिनोमियल है। तो वी फॉलो द स्टेप 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ से। तो वाई एस को एक्चुअली ऐसे करके लिखा गया है, सॉरी। तो देखो ये दिस इज ऑल्सो एसेंशियली डिराइव्ड फ्रॉम केस 1। केस 1 में क्या होगा कि 1 वी कैन राइट 1 बाय दिस टाइम्स दिस 1, तो ये तो केस 1 ही है, ठीक है। तो द एबव इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ टू ब्लॉक व्हिच आर कैस्केडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका और इसका ट्रांसफर फंक्शन जो है वो एक दूसरे का कैस्केडेड है। तो पहला जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो होगा, मान लो वी एस बाई यू एस जो होगा वो ऐसा होगा, इसको हम फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे, ये वाला कर लो। और इसके लिए जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है, जो अभी जस्ट हमने किया केस नंबर 1 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। वी टी को मान लो x1, डी वी टी बाई डी टी हो जाएगा x2 इक्वल्स टू x1 डॉट, टी स्क्वायर वी टी बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा x2 डॉट, ऐसे तो करके लिया है फाइनली ये हो गया। तो इस केस में जो स्टेट वेरिएबल्स है वो होंगे x1 x2 x3 टिल xn। यहाँ पर जब हम x डॉट को लिखेंगे तो मेरे पास जो स्टेट वेरिएबल्स होंगे वो हो जाएंगे x1 x2 टिल xn। नेक्स्ट यू टी इक्वल्स टू यू मान लो,
तो स्टेट इक्वेशन इसका बन के आता है इस तरह से, ठीक है। Now consider another one, this one पी एन वाले को, इसका हमने ट्रांसफर फंक्शन का जो ब्लॉक लिया वो लिया है वाई एस बाई वी एस। ये हमने देखो उसी को बाइफरकेट कर दिया है, वाई एस बाई यू एस को लिखा वी एस बाई यू एस, वाई एस बाई वी एस। तो ये वाला जो केस वन में था वो इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा और दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, अभी आते हैं सेकंड वाले ट्रांसफर फंक्शन पे जो कि सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर इज नॉट देयर। सो वाई एस इक्वल्स टू वी एस, तो वाई एस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि दिस टाइम्स वी एस ऐसे करके। Apply transfer function both the sides. Transfer function both the sides if you apply by substituting the state variables and yt equals to y in the above equation, we will get output equation like this. तो ये हमारा हो गया output equation, ठीक है। अभी देखो substitute x n dot value in the above equation, y का इक्वेशन ये हो गया, सिंप्लीफिकेशन इसका ऐसा हो जाएगा इस तरह से। तो बी एन टाइम्स दिस वन प्लस इससे जो आया वो ऐसा होगा, ये होगा। तो अभी देखो कि यहाँ पे y इक्वल्स टू ये आ रहा है टाइम्स एक्स वन, दिस वन दिस वन दिस वन, और पहला जो इक्वेशन था x का, x डॉट का, वो था x डॉट का जो वेरिएबल है वो x1 x2 xn तक है, दे आर योर स्टेट वेरिएबल्स। तो देखो फिर से वही इतना तो आएगा ही, ये वाला पहले वाले क्वेश्चन से कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, एक्स डॉट जब नहीं किया यहाँ से आ रहा है। ये पार्ट सबको क्लियर है, हो गया। पाई टू वाला जो पार्ट है वो हम देखते हैं, और प्लस इसमें जो यू का टर्म है सिर्फ लास्ट वाले क्वेश्चन में आ रहा है बी यू, यहाँ से लिखते हैं। वाई का जो होगा फिर से वाई को ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि वाई का जो इक्वेशन आया है वो ये आया है। तो पहला जो इक्वेशन होगा बी नॉट माइनस बी एन ए जीरो, यहाँ से देख लो बी नॉट माइनस बी एन ए जीरो टाइम्स ए एक्स वन, बी वन माइनस बी एन ए वन टाइम्स एक्स टू, वही हो रहा है। यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो ये वाला टर्म जो है ये इसके एसोसिएशन में है, एक्स वन के एसोसिएशन में, ये वाला जो टर्म है वो एक्स टू के एसोसिएशन में, ऐसे करके। एंड देन बी एन इक्वल्स टू जीरो, so b, so finally y you can write as b1 b0 b1 etc, क्योंकि यहाँ पर bn का जीरो, bn का वैल्यू जीरो पुट करेंगे। if bn equals to 0 then you will be left with b0 b1 b2 b यहाँ तक bn minus 1 bn minus 1। So y will be essentially your b naught b1 bn minus 1 bn minus 1 this one, ऐसे करके होगा। ये हो गया हमारा y और d जीरो हो गया, तभी now you can again correlate this with you can correlate x dot equals to af plus bu, y equals to cx plus du, है ना। तो a मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इस केस में, इज योर ए मैट्रिक्स 0 1 0 0 0, इसका यहाँ से यहाँ तक, तो ये है हमारा ए मैट्रिक्स। तो योर ए विल बी दिस वन। बी मैट्रिक्स क्या होगा, द मैट्रिक्स विच इज एसोसिएटेड टू कंट्रोलर u, दिस इज योर बी मैट्रिक्स 0 0 0 b 0, so you write b matrix as this one। y इक्वल्स टू होता है सी एक्स टाइम्स सी एक्स प्लस बी यू, तो ये है हमारा सी एक्स। तो सी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी जीरो बी वन बी एन माइनस टू बी एन माइनस वन, तो दिस इज योर सी मैट्रिक्स। और डी मैट्रिक्स क्या होगा, कैन समबडी टेल मी व्हाट विल बी द डी मैट्रिक्स नाउ।
So can you hear me? Hello? Yes, Trivil. So D should be 0, right? क्योंकि D का जो एलिमेंट है यहाँ पे वो नहीं है, 0 है. That will be your 0. Okay. So now with this we are done with these two examples and or these two cases. So just quickly revise करते हैं कि हमने क्या क्या किया and then I'll get your doubts. So, so very quickly let's revise this module once again. So this is the most fundamental concept: x dot equals to ax plus bu, y equals to cx plus du. And then we also defined all the variables appearing in the equation, उसके physical meaning, and we defined the concept of state variables, state vectors, and I also gave you the real-time examples and defined what are in that system, what the state variables and state vector. RLC सर्किट हमने देखा कि इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लिया हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में, एंड देन वी हैड कन्वर्टेड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्टेट स्पेस. तो आरएलसी सर्किट का जो डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल है वो ऐसा है, डी आई एंड डी वी के टर्म में. तो ये करंट एंड वोल्टेज इसके स्टेट्स हो गए, फिर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्टेट स्पेस के टर्म में, एंड देन द सेम थिंग वी आर ट्राइंग टू डू विद ट्रांसफर फंक्शन मॉडल को स्टेट स्पेस मॉडल में कन्वर्ट करना है. तो उसमें क्या होगा, दो केसेस अराइज होंगे. फर्स्ट केस व्हेन योर न्यूमरेटर इज कांस्टेंट एंड सेकंड विल बी व्हेन योर डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट, सॉरी व्हेन योर न्यूमरेटर इज पॉलिनोमियल. वो कांस्टेंट एंड पॉलिनोमियल दोनों केस के लिए हमें स्टडी करना है. तो ये वाला हो गया कांस्टेंट के केस है फर्स्ट केस में, इसको हमने सिंप्लीफाई किया इस तरह से और फिर एस डोमेन से टी डोमेन में कन्वर्ट कर दिया बाय टेकिंग इनवर्स लाप्लास, एंड देन you take you convert them in terms of states. So मान लो कि yt इक्वल्स टू x1 है, तो डेफिनेटली अगर yt x1 है तो dy by dt जो होगा वो x2 हो जाएगा, विच इज x1 डॉट होगा. ऐसे करके इसका जो nth ऑर्डर होगा दैट विल बी xn डॉट. इसको हमने अलजेब्रिकली लिखा है तो वो ऐसा दिखेगा, एंड देन दिस वन ओनली यू हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स. आउटपुट इक्वेशन yt इक्वल्स टू y है. तो यहाँ पे अगर हम x डॉट के जो वेरिएबल्स हैं स्टेट वेरिएबल्स वो है x1 x2 टिल xn, और इसको अलजेब्रिक फॉर्म में और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा. प्लस u के साथ एसोसिएटेड क्या है, सिर्फ b0 है, बाकी के एलिमेंट 0 है इसमें. दिस इज योर a मैट्रिक्स, दिस इज योर b मैट्रिक्स. y का जो इक्वेशन था वो था y इक्वल्स टू सिंपली x ऑफ 1, y इक्वल्स टू x ऑफ 1. तो 1 के साथ जो होगा वो 1 आएगा x1 के साथ, बाकी इसके एलिमेंट 0 होंगे. तो दिस इज cx एंड d टाइम्स u, मतलब क्या हुआ कि d का जो एलिमेंट होगा 0 होगा टाइम्स u. सो इस स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में x डॉट इक्वल्स टू x प्लस du, y इक्वल्स टू cx प्लस du, a will be your this matrix, b will be this matrix, c will be this matrix and d will be this matrix. ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा कि अगर एग्जांपल ऐसा है ys इक्वल्स टू us इक्वल्स टू 1 बाय s स्क्वायर प्लस s प्लस 1, तो इसको अरेंज कर लो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इसका लाप्लास ले लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा. मान लो yt इक्वल्स टू x1 है तो इसका डेरिवेटिव x1 डॉट होगा. ड्यूटी के लिए ऐसा कर लिया, आउटपुट ऐसा कर लिया. तो इसका इस स्टेट में दो वेरिएबल्स हैं, दो स्टेट वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2. सो योर मैट्रिक्स ऑफ a डायमेंशन ऑफ a मैट्रिक्स विल बी 2 क्रॉस 2 बिकॉज जनरली a इज रिटन एज n क्रॉस n. तो a का जो डायमेंशन होता है वो n क्रॉस n होता है, एंड n इज योर नंबर ऑफ स्टेट्स. इसका डायमेंशन हो जाएगा n प्लस 1, n इज योर नंबर ऑफ स्टेट्स. इसका डायमेंशन हो जाएगा 1 प्लस n, n इज योर नंबर ऑफ स्टेट्स. दिस इज 0 में 3 0. तो a मैट्रिक्स इसका ये हो गया, b मैट्रिक्स ये हो गया, c मैट्रिक्स ये हो गया. तो प्लीज रिमेंबर दैट इज आल्सो दैट विल बी यूजफुल नाउ a b c d मैट्रिसेस to finding the controllability matrix and observability matrix. So this is very important to understand. Now next will be your transfer function having polynomial x s in numerator, मतलब s का polynomial यहाँ पे है. So now you see what can you visualize. This is also a combination of case 1
and only numerator terms. So इसको ऐसे हम भी हम लिख सकते हैं 1 by this polynomial denominator polynomial times the numerator. तो ये case 1 का transfer function हो गया. This transfer function you can consider as a separate transfer function. So you can name as ys equals by us equals to vs by us ys by vs. तो vs by us जो है ये हो गया, ys by vs ये हो गया. अब now we know that how to solve vs by us by having this ys by vs जो है वो उसको सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे. तो पहले ये देख लेते हैं. vs by us क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये ऐसा आएगा, इसका इनवर्स लाप्लास ले लेंगे एंड देन वी अज्यूम दैट vt इक्वल्स टू x1. सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x1 डेरिवेटिव दिस. तो मान लो x जो है वो स्टेट वेरिएबल है, स्टेट है, which is a combination of state variable. तो x के अंदर जो स्टेट्स होंगे वो x1 x2 xn तक होंगे. यहाँ पे आते हैं फिर से, तो xn को सिंप्लीफाइड वे में हमने ऐसे लिखा. और ys by vs जो सेकंड ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर है, देयर इज नो डिनोमिनेटर, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका इनवर्स लाप्लास लिया. तो y यहाँ से निकलेगा yt निकलेगा. तो yt विल बी समथिंग लाइक दैट, है ना. एंड y विल बी योर bnxn डॉट bnxn ऐसे करके. इससे हम अगर देखेंगे तो बी ये u का सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया y का, सॉरी, एंड अगेन यू कैन राइट लाइक दैट. तो दिस इज योर स्टेट इक्वेशन एंड मेजरमेंट इक्वेशन यू सॉ. तो स्टेट इक्वेशन जो पहला वाला था अंडरस्टैंडिंग से, वी गॉट a टाइम्स x, द मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू कंट्रोल विल बी b मैट्रिक्स, ये ऐसा आ गया. एंड देन y इक्वल्स टू cx, ये मैट्रिक्स जो cx है. इन केस अगर bn 0 है then we will erase b1 bn term and you will be left with b0 b1 bn minus 2 bn times x plus du. So that is how you find your state space model. In this state space model we have a matrix, b matrix and c matrix. This is your a matrix, this is your b matrix, and now this is your c matrix plus d times u. There is no element associated to d, that's why d will be 0 matrix. So again you can represent in terms of ax plus bu and y equals to cx plus du, and now you know a matrix, b matrix, c matrix and d matrix. So if you are asked to convert a state space model into state space model, sorry, if you are asked to convert transfer function model to state space model, so that will be your answer. So you will have two cases, possibility of two cases. First, when your numerator is constant, and second, when your numerator is polynomial. So we have seen for both the cases and we have solved them. So now do you have any doubt or any clarification to make? Okay, so Jill is asking what about the other assignment. So very soon I will upload the assignment and I hope you will enjoy it. So maybe this week only I'll try to send the assignment. So I assume that there is no doubt regarding this class, so we'll wind it up here. Or in case you, Sir, हाँ निखिल बोलो. so what about the end exam? Like it's online? End sem exam, see, it depends on the instruction given by coordinator, department coordinator Nikhil. So whatever they decide or he will decide, we will follow it. So I'll let you know that if it is offline, then we will go offline. If it is online, then I'll follow this process. So it's not in my hand. I have to follow that, or I'll see that if I can interfere in that. But again, we have to wait for the notice because to make it uniform, we have to follow the office instruction. So far, I have not received, and I'll let you know if there is some change. Okay, sir. Okay, sure. So let's meet on Wednesday at 11:45, and then we will discuss about next class. So thank you so much. Have a good day.